session. May I know that? Laws on the backward section. That I understand. In fact, what you people want, in fact, and what you get, that is my question to you. So actually, to understand if someone in the deprived section, basically in section 12, it provides that we can give legal aid to a particular person, like six particular individuals. So you people are preparing yourself for delivering some motions of justice for that. Good. So you're all students of law. I'm not at all a student of law. Getting it? मैं law पढ़ाने वाला आदमी नहीं. मैं law तोड़ने वाला आदमी हूँ. ठीक है? The social legislations can't be much more elaborately dealt by you than any other person here. And when you take into consideration law and then justice and many more frames, बहुत सारी समस्याएं आती हैं. What's that? You asked me to discuss Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989. So can you tell me, क्या कभी Scheduled Caste को कभी जो इंडिविजुअल तुम्हारे साथ पढ़ते हैं उनको एज ए Scheduled Caste तुमने कभी परसीव किया है या कभी एज ए Scheduled Tribe परसीव किया है? समझ रहे हो? What I am saying? After 65 years of independence, if we are talking about atrocities with reference to Scheduled Caste, with reference to Scheduled Tribe, तो चीजें थोड़ा अजीब सी नजर आती है. You are very much familiar with the Scheduled Caste. What about Scheduled Tribes? Because in your vicinity, maybe you are not getting Scheduled Tribe. बात समझ रहे हो? So what are the atrocities? अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि जो atrocities हैं वो atrocities हैं क्या? बोलो. मान लो तुम एक assume करके आए हो कि साहब ये Scheduled Caste है, Scheduled Tribe है, कुछ atrocities होती है, तो वो atrocities हैं क्या? And what are the important sides of those atrocities that you have in your mind? तुम्हारे दिमाग में क्या है? कहाँ पे तुमको लगता है कि वो discrimination है? कहाँ पे तुमको लगता है कि नहीं उनके लिए मुश्किलें हैं? वो क्या sides दिखती है तुमको? कहाँ तुम्हारा personal experiences है? तुमको कहाँ चीजें दिखाई पड़ रही हैं? In access to basic amenities, in access to recently the households not giving that particular community को मकान किराए पे नहीं देते some of the caste people. Basically, you are not accepting them as an equal human being. And judging them on their caste, basically. Anything which is judging them on their caste, anything. Or simply asking them to shift a chair, even that I think is covered. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लॉ के स्टूडेंट कास्ट की बात करते हैं. तो I feel very good कि starting from Ambedkar's citizenship, as a citizen, you are coming to I don't know किसका कास्ट. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कभी कास्ट की बात नहीं करता, वो तो सिटीजन की बात करता है. बट अब हम सारी चीजें जो है कास्ट की बात करते हैं. सो दैट सिटीजन वो कहीं गुम हो गया. What are the sites of atrocities? I have chosen that because when I was going through the literature, where जो students हैं मेरा साथ third semester में, they must be familiar with कि मैं कुछ चीजें उनके साथ जैसे ये जो दलित पर्सपेक्टिव है उसको मैं डिस्कस करता हूँ, और जो मेरे पास इम्पोर्टेंट टूल्स हैं वो 2-3 लोग हैं जिनको लेके मैं इनिशिएट करता हूँ चीज़ों को. वन जो पार्टीशन नैरेटिव है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान डिवाइड हो रहा है तो एक बहुत जुमला चलता है, कहानी चलती है, जो लाहौर की स्ट्रीट्स पे दो झाड़ू लगाने वाले आपस में बात कर रहे हैं, बोले शहर में बहुत चहल पहल है. बोला हाँ हाँ साहब, यहाँ से जो क्या कहते हैं हिंदू लोग हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं और हिंदुस्तान जा रहे हैं, और उधर से मुसलमान लोग यहाँ आ रहे हैं. बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ना, हम उधर भी चले जाएंगे तो झाड़ू लगाएंगे और इधर भी है तो झाड़ू लगा रहे. सो मीनिंग देयर बाय एंड दैट
After that, if you take into consideration the different studies, जब तुम जो माइग्रेशन से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, तो हिंदुस्तान से जो पाकिस्तान गए, आई डोंट नो अबाउट देम, तो जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, दिल्ली की कॉलोनीज में वो सेटल हुए, और इफ यू गो बाय द स्टडीज, मोस्ट ऑफ द टाइम दोज सेटलमेंट्स दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। बोले साहब हम अपर कास्ट ग्रुप के हैं, हमारा सेटलमेंट यहाँ होएगा, ये छोटे कास्ट ग्रुप के हैं, इनका सेटलमेंट यहाँ होएगा, एंड द स्टेट मशीनरी वाज सपोर्टिंग दैट, स्टेट ने भी उसको सपोर्ट किया। चलिए साहब आप कहेंगे वो ट्रांजिशन का पीरियड था, हिंदुस्तान पाकिस्तान डिवाइड हुआ, बड़ा मुश्किल था संभालना, नहीं संभले, कोई बात नहीं। वन वेरी गुड इंपॉर्टेंट स्टडी आई वाज गोइंग थ्रू इज विद रिस्पेक्ट टू सुनामी। 2004 या 5 में सुनामी आया तुम्हारे यहाँ, 4 में, और बड़ा मुश्किल रहा। जो रिलीफ कैंप्स तुमने लगाए, वंस अगेन यू आर गेटिंग अपर कास्ट लोअर कास्ट, साहब ये देखिए ये हायर कास्ट ग्रुप के, इनके लिए बढ़िया सा इंतजाम करिए, एंड हु आर डूइंग ऑल दैट? इट्स द स्टेट। वंस अगेन जो स्टेट की मशीनरी है, जो स्टेट का रिसोर्स है, जो स्टेट के सिस्टम्स है, वो सारी चीजों को कर रहे हैं, मीनिंग देयर बाय वंस अगेन कास्ट इज असर्टिंग लाइक एनीथिंग। फिर एक बहुत बढ़िया सा सर्वे आया, तुम्हारा लाइब्रेरी में वो किताब भी है, अनटचेबिलिटी इन रूरल इंडिया, 2006 में वो बुक फॉर्म में आया, 4 में उन्होंने 2 से 4 तक उन्होंने सर्वे किया। एज अ गुड स्टडी, ये पूरे 11 स्टेट्स का इन्होंने स्टडी किया, एंड बट दे आर गेटिंग दैट मोस्ट ऑफ द सोशल प्लेसेस, इन फैक्ट देयर यू आर गेटिंग सम टाइप्स ऑफ discrimination, whether it's a source of water, whether it's entering into the non-Dalit house, whether it's a police station, anything, कुछ भी सोचो तुमको वहां पर दिख रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म का एक डिस्क्रिमिनेशन दिखाई पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल तुम खुद भी करते होगे, मुझे लगता है, कभी कभी सुबह जो वो वॉशरूम साफ करने आता है, उससे कभी हाथ मिलाया तुमने? कभी उसको देखा है तुमने किन कंडीशंस में काम करता है? तुम लोग तो लीगल एड दे रहे हो बाहर, यहाँ क्यों नहीं देते हो? उसे पूछो कि तुम्हारे हाथ में ग्लोव्स नहीं है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स यू हैव, वो खुले हाथ से सारा काम करता है। वो ऐसे की बोतल लेके वो सुबह शाम शुरू है, बट दैट इस तरह से डिफरेंट साइड्स ऑफ तुमको डोमेन मिलेंगे जहां पे वो डिस्क्रिमिनेशन है। तो साहब आपने क्या कहा? बोले कोई बात नहीं। सबसे पहले कहां से शुरू किया आपने? अंबेडकर बाबा, वो सबसे बड़े चैंपियन थे इसके, साहब इसको खत्म करना है, बहुत मुश्किल करता है ये। दूसरे चैंपियन गांधी, बोले नहीं साहब बिल्कुल खत्म करना है। एंड देन 1955 का अनटचेबिलिटी एक्ट जब पास हुआ, और नो वेल बिफोर दैट जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तुमने इसके रिलेटेड प्रोविजंस को ओके किया, देन पीपल से महात्मा गांधी की जय। गांधी तब तक ऊपर जा चुके थे। Ambedkar was all a mook dictator at that time. He is perceiving the situation well before that. Just 1 year back, he has written a very good article and book, what Gandhi and done for untouchables in India. तो अम्बेडकर के सामने जब महात्मा गांधी की जय हुई होगी इसको लेके, तो कितना उनको पेन हुआ होगा। बट बोथ दे आर वेरी करेक्ट इन देयर अप्रोच। गांधी एंड आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव, अम्बेडकर एज ए इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव। अम्बेडकर उस सारी डिस्क्रिमिनेशंस को झेल रहे थे, देख रहे थे इनसाइड से, और वो चीजों पे रिफ्लेक्ट कर रहे थे। गांधी as an outsider, in fact, if you perceive the method of Gandhi, that empathy is there on the part of Gandhi, that Gandhi can put himself in the position of those who are discriminated, and from there at least he is writing the things. इसलिए गांधी के आश्रम में जब तुम जाओगे तो पहला टास्क तुमको यही मिलेगा, you go, you wash the washrooms. So this first task, anybody during the time of Gandhi, I don't know about the present time. So that was the first task assigned to you, so that at least your ego as a judge वो नीचे आ जाए. And when you are acting as an important
resources as far as justice distribution system is concerned. Most of the time you need to understand how to put yourself in the position of those with whom these type of discriminations they are there. दूसरी बहुत important चीज जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहूँगा, it's not only here in India. I have a book by Paul Guman, ये तो 2011 का किताब है, British Untouchables, a study of Dalit identity and education. तो तुम इसको यहाँ से UK में भी लेके गए. And in 2011 he is writing that most of the time the upper caste group who are settled there, they are having certain reservations as far as the lower caste group is concerned. Maybe that discrimination is a different one because the context is a different one. So उससे आप free नहीं हुए. Most of the things जो हम बहुत सारी बातें करते हैं, but वो बातें कहीं यहाँ रहे, आप अमेरिका में रहे, कहीं रहे, क्योंकि जो basic background है, which compels us, वो मुश्किल करता है. When you talk about law, I always say in the terms of Weber that we have three important perspectives as far as laws are concerned. One, we say the philosophical aspect, कि उस law की philosophy क्या है. We talk about the external aspect, उसके impact क्या है. We talk about internal aspect, which you say jurisprudence, which you say consistency, inconsistency as far as the law is concerned. तो तुम्हारा जो legal scholarship है, वो most of the time they depend upon consistency and inconsistency. That is the jurisprudential aspects. What about the impacts? For example, the different sites of discrimination that is there in 1989. Those sites of discriminations were there in 1955 or not? That is an important frame. Then in 2014 I was going through once again this Ministry of Law and Justice, the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Amendment Ordinance 2014, including some important documents. जो कि मैं law का नहीं हूँ, ये law बहुत अजीब से तुम लोग लिखते हो, पढ़ने का मन नहीं करता. तो मैंने अपना स्टूडेंट बैठा था, मैंने कहा इसको पढ़ो, कुछ इसमें दिखता हो तो मुझे बता देना. तो उसने मुझे एक दो चीजें बताया. बोला साहब इन्होंने बहुत स्पेसिफिक कुछ जो साइट्स है उनको बढ़ा दिए. And then they are also talking about forest dwellers, forest rights. So well before that मेरा तुमसे एक important सवाल है कि तुम ये सारी चीजें इतने देर में कैसे जान पाते हो? तुम्हारे यहाँ जो dwellers रह रहे, forest dwellers रह रहे, जो tribes रह रहे, वो आज से तो नहीं रह रहे हैं. वो अंग्रेजों के जमाने के पहले से रह रहे हैं और हमारे कह सकते हो अगर पूरे डिसेंडेंसी में वो सबसे पुराने जेनेटिक मटेरियल के साथ रह रहे हैं. So just in 2014 and 2006 we are getting Forest Rights Act और फिर 2014 में तुमको लगा कि साहब ये भी इम्पोर्टेंट साइट है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन दिखाई पड़ता है. अब सवाल यहाँ पर दो है. One, whether we are perceiving that individual discrimination by an individual, that is one thing. Whether we are getting that discrimination from the side of the state, that is another thing. अब साहब ये स्टेट को क्वेश्चन कौन करेगा? स्टेट को कौन क्वेश्चन करेगा? यहाँ पे जैसे एक आदमी ने डिस्क्रिमिनेशन किया, तुमने कहा हम कोर्ट में चले गए, पुलिस में चले गए, साहब वो रिपोर्ट आ गई, वो जेल चला गया, उसको कितने साल की सजा, सब कुछ इसमें लिखा हुआ, तुम जानते हो. ये सारी कहानी हो गई. कोई मुश्किल नहीं है, अगर कोई इस तरह की व्यवहार करता है, इस तरह की बातें करता है, तो कोड इज देयर टू टेक केयर ऑफ. बट सपोज स्टेट इज वायलेटिंग ऑल दैट, स्टेट इज डिस्क्रिमिनेटिंग, और 47 से अब तक स्टेट ही तो डिस्क्रिमिनेट करता चला रहा है. कितनी बार सजा दी तुमने स्टेट को? क्योंकि अभी भी तुम क्या राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हो, उसके बाद कह रहे हो कि राइट टू फूड की बात करेंगे. खाना नहीं दे पा रहे हो, पढ़ना नहीं दे पा रहे हो, तो ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन है. अगेंस्ट whom we are doing? यही लोग, the deprived tribes first, scheduled caste second.
Now the question comes, if you go by the basic philosophy, most of the time, no doubt, we are talking about individual citizen at present, but most of the policy frames, they are taking into consideration your identity as a community, not as an individual. So, very important question यहाँ पर आता है कि साहब अगर वो discrimination in mass हो रहा है, तो उसका क्या इलाज है? तो आपने कहा कि साहब हम we are coming up with the affirmative actions, we are coming up with certain plans, programs, different things. But the question is, once you do the exploitation, then you come to realize we have done that. Now the question is कि साहब वो punishment कैसे मिलेगा फिर? How state is responsible for that? That is very important, and that is why that exploitation from the side of the state led to किस तरह के developments हुए? Insurgents. अच्छी चीज बातें करेंगे, बुरी बातें नहीं करेंगे, अच्छी चीज डेवलप होती है. Was that? So emergence of the civil society for the first time in India. Yes. 90s onwards तुम देख रहे हो जबरदस्त तरीके से civil society का emergence है. And nothing wrong done by the state, by the individual state is there to say साहब आप बेईमानी कर रहे हैं, साहब आप discrimination कर रहे हैं, ये मुश्किल है. तो it's not as if state was all बहुत ज़्यादा निरंकुश है, state सब कुछ कर सकता है. No. 90s onwards what you are getting, most of the time, whatever the state is doing, there is a check. Civil society is emerging in a very different form here in India. Maybe if you go by different studies, कुछ studies कहेंगे कि साहब इतना जबरदस्त तरीके से civil society के agents emerge किए. For example, if you go by the statistics, जितने NGO तुम्हारे उत्तरांचल में है, उतने कुछ यूरोपियन कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं है. तो मे बी इतना ज़्यादा अगर डेवलपमेंट है तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव है. आई एम फॉरगेटिंग दैट. आई एम टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ओनली द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द सिविल सोसाइटी एंड द एजेंट्स ऑफ द सिविल सोसाइटी. तो यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि जो सिविल सोसाइटी एटलीस्ट एक मैच्योर फॉर्म में इमर्ज चुकी है. जब सिविल सोसाइटी का इमर्जेंस तुम देख रहे हो और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की प्रॉब्लम्स को परसीव कर रहे हो, so this 90s onwards is a very positive with reference to scheduled tribe. Scheduled tribe के लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि for the first time बहुत अच्छे कानून तुमने पास किए, बहुत अच्छे कानून पास किए. 2014 के ड्राफ्ट में भी तुम फॉरेस्ट राइट्स की बात कर रहे हो. इसके पहले तुमको समझ में नहीं आया कि जंगल में भी आदमी रहता है. तुमको ये लगता था जंगल में तो जंगली जानवर ही रहता है. Getting it? It's a real fact. If you go, I'm not talking about forests and jungles. I'm talking about the forests of the Uttar Pradesh. You go to people reside there in the mid of the forest. वहाँ पे elephant भी रह रहा है, वहाँ पे tiger भी रह रहा है, वहाँ पे आदमी भी रह रहा है. It's a good habitation, and they are surviving. अब सवाल ये उठता है कि उनके भी तो कुछ rights होंगे. तो उनके जो राइट्स हैं वो तुमको कभी याद नहीं रहा. किसने याद दिलाया? There was a recent case as well. तुम लोगों ने याद दिलाया. मैं कहता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन की औलाद है. तो जब वो बाजार आया तुम्हारे यहाँ तो बोला कि साहब काम करेंगे लेकिन we need good environment. जैसे मोदी बनाने गया कि साहब आइए हम बड़े एनवायरमेंट देंगे. तभी तो आएगा वो. क्यों आएगा तुम्हारे यहाँ अगर तुम बार-बार झंडा लेके खड़े हो जाओगे कि नहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद? वो विल कौन? तो साहब वादे पे याद हो गए वो. Well before that नर्मदा इशू तुमको खूब अच्छी तरह से पता है. वहाँ पर पहली बार रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी इसी वजह से आई. इसके पहले तुमने केयर नहीं किया. तुमको लगा नहीं है जो एसी चैम्बर में हम लोग बैठे हैं उसकी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है. तो वहाँ से आ रही है जहाँ पर बेचारे डिप्राइव्ड लोग रहते हैं. तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ चली आई लेकिन वो जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए. उनको भी स्ट्रेंथ मिली this 90s onward civil society movements. And as a result of that 2000 के आसपास तुम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे कुछ रिसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन पैकेजेस आए.
कितना वो फुलफिल कर रहे हैं कितना नहीं, दैट इज अनदर स्टोरी, बट एटलीस्ट अ डेवलपमेंट वाज देयर। 2006 में तुम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लेके आए, अमेजिंग। तुमने कहा कि जो भी जंगल में ट्राइब्स रह रहे हैं उनको जमीनें दे दी जाए, मिल गई, उत्तर प्रदेश में मिल गई। Now they are all in the process of distributing the land to the other forest dwellers. उनके लिए कंडीशंस उन्होंने लगा दिए कि साहब 75 साल अगर आप रेजिडेंशियल प्रूव कर दें अपनी यहाँ पे तो मिल जाएगा। वो झगड़ा चल रहा है और उत्तर प्रदेश का हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट मूवमेंट तुमको फ्रॉम द साइड्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स दिखाई देगा। वो धीरे धीरे उनको भी मिलेगा, नो डाउट अबाउट दैट। तो साहब ये दूसरा डेवलपमेंट हुआ। 2006 में एक नया अच्छा कानून आप लेके आए। फिर 11-12 के आसपास जब मिनरल माइनिंग पॉलिसी आप फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उसको पास होने की प्रोसेस में आ रहे हैं आप, तो कहते हैं कि साहब जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छी बातें करेंगे, उनको जो कुछ रॉयल्टी जो मिल रही है वो डायरेक्टली पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कुछ उनके डेवलपमेंट के लिए करेंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद इतनी सारी जब चीजें होती है, जब बाजार अपना मैजिक कैसे दिखाता है, देखो ये जो जज तुम बनोगे ना तो तुम बोलोगे नहीं नहीं हम बहुत ऑब्जेक्टिव होंगे। हमेशा कहते हैं लॉ इज एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट, तो बदलता नहीं है, लॉ अगर लिख गया तो लिख गया, और देखिए कितनी अच्छी चीजें करता है। बट जब तुम वो विजडमफुल कोर्ट में पहुंचोगे, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचोगे ना, तो वो लॉ ऑब्जेक्टिव नहीं होता। योर विजडम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेयर फ्रॉम दैट विजडम कम्स स्टेट। मोदी जी बताते हैं तो जज साहब को समझ में आते हैं, बट with the state there is another important agency, that is the market. अब मोदी जी भी बताएंगे तो काम नहीं चलेगा क्योंकि बाजार बहुत मजबूत है। तो ये सारे डेवलपमेंट जितने हैं वो बाजार के डेवलपमेंट, इसलिए नहीं they believe in welfare, no, it's not like that। वो वेलफेयर करने नहीं आया यहाँ पे, वो आया है यहाँ पर अपना काम करने के लिए और उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। And that's why they are emphasizing upon having good laws so that the local protests will not be there. अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट भी खुश हो गया कि साहब ये देखिए स्टेट इतनी बढ़िया चीज कर रहा है, हम लोग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अरे PIL तुमने सुनी होगी, भगवती साहब की, हाँ आज तक नाम नहीं लिया उन्होंने, कहाँ से लाए थे, खैर वो बात पुरानी हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जब वेदांता का केस आया तो कुछ उल्टा सीधा कर दिया, कुछ अच्छा किया बुरा किया वो खुद जानते होंगे बेहतर, लेकिन जो किया वो मुश्किल वाला कर दिया। मतलब एटलीस्ट दे रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द लोकल पीपल, देयर पंचायत, द पीपल हु आर द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा, एटलीस्ट दे आर गोइंग टू डिसाइड whether that development is needed or not। फिर यहाँ पर फिर वो भगवान वाला सवाल आ गया। तुम लोगों ने सारा नियमागिरी वाला केस पढ़ा होगा, उड़ीसा का पूरा हिसाब किताब। तो वो बोले साहब कि हमारा भगवान बहुत इंपॉर्टेंट है, कि तुम्हारा बॉक्साइड इंपॉर्टेंट है या हमारा भगवान इंपॉर्टेंट है। अब हिंदुस्तान में अगर भगवान ना हो तो कैसे काम चलेगा, तुम्हारे तो गॉड पार्टिकल्स हो ना, एंड दैट हो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हो, सारे के सारे भगवान यहाँ पे पैदा हुए, तो कुछ लैंड में इंपॉर्टेंट तो है ना, इसीलिए तो तुम यहाँ पैदा हुए, यहाँ पढ़ रहे हो, और तुम्हारा यूनिवर्सिटी भी लोहिया के नाम पे, वो बहुत बड़ा भगवान था। हाँ, बीजेपी वाले झूठ मूठ लोहिया को क्रिटिसाइज करते हैं, वो दे नो लोहिया इज वेरी मच with them in fact. Lohiya was the person who initiated Ramayana Mela in Ayodhya, but before that no one was there. चित्रकूट में भी मेला शुरू कराया, तो लोहिया as a important individual as far as BJP और सपा के लिए तो बहुत कठिन है, लोहिया को लाइक बहुत मुश्किल। So once again what I am emphasizing upon, most of the time the individual atrocities by an individual, redressal mechanisms are there, पुलिस है, कोर्ट है, community है, you can have some relief, but what about when the rights are violated in mass by the state? उसके लिए कौन बोलेगा? And starting from 47 onwards in fact, हर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ने आदमियों को डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस कौन हुए? हम और तुम नहीं, हम तुम तो इसी चैम्बर में बैठे पड़े।
वो जिनकी बातें कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. And most of the time, these displacements, they were not at all without any protest. ऐसा नहीं है कि आपने उनको घर से निकाला और उन्होंने कहा नहीं 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 मैं नहीं निकलूंगा. हर डिस्प्लेसमेंट एक प्रोटेस्ट लेके आया. ये तुम्हारा ये कानून कहता है कि अगर कोई आपको प्रोटेस्ट करने से मना करे तो आप चले जाइए पुलिस में रिपोर्ट कराइए. यहाँ स्टेट ने मारा इतनी जोर से कि उसके पैर टूट गए. वो रिपोर्ट किसको लिखाने जाएगा? पुलिस उसका रिश्तेदार तो नहीं है, स्टेट का एजेंट तो है. फिर वहां पे समस्या शुरू हुई. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक उत्तर प्रदेश, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है. जब वो सोनभद्र इलाके में रियन परियोजना शुरू हुई तो बड़ा मुश्किल शुरू हुआ. वो लोकल लोगों ने जो है वहाँ ट्राइब्स भी है, शेड्यूल कास्ट भी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हारा मिनरल्स भी है, वाटर रिसोर्सेज भी है, एवरीथिंग इज देयर. और सबसे पिछड़ा क्यों है भाई? लखनऊ में तो कुछ नहीं है, फिर भी बढ़िया साफ सुथरी रोड, चमकते चेहरे. वाह, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं. तो साहब रियन जब शुरू हुआ तो वहां पर प्रोटेस्ट मूवमेंट आए. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैं भगवती का बार बार नाम लेता हूं तो दैट इज वेरी मच कोरिलेटेड विद दैट प्लेस. अगर तुम पुराने लोगों से मिलोगे, जानोगे तो चीजें निकल के आएंगी. सो व्हाट अबाउट दैट? वो लॉ तुम्हारा जो है कहने में थोड़ा डरता है, अपने ऊपर ओनस लेने से डरता है. स्टेट ने कभी अपने ऊपर कोई ओनस नहीं लिया कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा. अगर उसने लिया भी, जैसे कि तुम्हारा राइट टू एजुकेशन बनाया, तो क्या मतलब हुआ? कौन फॉलो कर रहा है उसको? जब तक एजेंट्स ऑफ सिविल सोसाइटी नहीं दौड़ रहे हैं दरवाजे टू दरवाजे, कोई पूछने वाला नहीं. यहां पर भी इश्यू यही है, इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन by the individual, by the community. At least you can report to the police, you can report it to the court, you can report it to any other individual or group or community or the agents of the civil society. But what about the atrocities done by the state? What about the atrocities done by the market? Who is going to take care of? That is important in fact, and we need to understand that these important laws, these important ordinances, they are going to address that. क्या ये दोनों issues को address कर पा रहे हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण है. तो जब तुम फील्ड में पहुंचोगे, जब तुम ज्ञान बांटोगे अपना, तो as a individual who is well versed with the law, इसी तरह से जाओगे उनको बताओगे कि साहब हम लोग लॉ पढ़ के आए हैं और तुम्हारी समस्याओं को हम समाधान करेंगे, यही तो बोलोगे. अब अगर समस्या है इंडिविजुअल से बड़ी है तो क्या करोगे? मान लो वो समस्या एक इंडिविजुअल की नहीं है, एक पूरे गांव की है. व्हाट यू आर गोइंग टू डू? तुम्हारा क्या रोल होगा? और दूसरा इशू जो इंपॉर्टेंट है, वो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिला के पढ़ने लगे हो, वो डिफिकल्ट. बोथ आर वेरी डिफरेंट आइडेंटिटीज. बोथ आर वेरी डिफरेंट आइडेंटिटीज. शेड्यूल कास्ट वेल विद इन योर कास्ट फोल्ड, शेड्यूल ट्राइब वो उस फोल्ड में भी नहीं, वो उसके भी बाहर है. तो उसके जो कोशेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है वो एकदम अलग. तो यहाँ पर ये जो एक्ट इन्होंने बना तो दिया, और इसलिए बनाए कि साहब कहाँ केस फेस आएगा, कौन मुश्किल में करता है, ये सारी चीज़ें. स्टेट का अगर सपोर्ट है तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, स्टेट का सपोर्ट नहीं है तो बहुत मुश्किल होएगा. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द regime of मायावती, एटलीस्ट सम assertions were there with respect to this particular law. अब मुलायम का आ गया तो अब जाके रिपोर्ट लिखाओ. तुम लोग तो लॉ वाले हो, बताओ कि साहब हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ. हाउ डिफिकल्ट इट इज. So notionally act is good. Sites which they are talking about still really meaning thereby discrimination is there, and that discrimination in fact in certain cases at the extreme level